Uh, while we wait for the lapel mic to be put on, let me welcome all of you for a very captivating fire chat session in today's International Global Summit. I'm hoping for this to be very, very interesting. We have a very dynamic personality here from the world of finance and the media. And he's the managing editor of the Z Business and a very, very strong personality in the financial journalism spectrum. I would all want you to please put your hands together for an interesting session of market insights, career secrets, and even a few untold anecdotes, if he wishes to, from this brilliant minds of the Indian financial headlines, Mr. Anil Singhvi. Thank you. Thank you. Thank you so much. जय जिनेंद्र अनिल सिंह जी जय जिनेंद्र अपना चैट थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश में होगा चलेगा जैसा आप कहें सर मारवाड़ी भी आती है मुझे अच्छे बहुत से बढ़िया बहुत बढ़िया लेकिन एक बात बता दूं जो लोग घूम रहे हैं फिर रहे हैं उठ रहे हैं अगले 30 मिनट आपके लिए पैसा बनाने का समय है अगर आप आए हैं दुबई और पैसा बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ अपनी अपनी जगह ले लें क्योंकि रुपेश भाई कुछ ऐसा पूछने वाले हैं जिससे शायद आपको पैसा बनाने में मदद मिले Anil ji, I was thinking of not going deep stocks specific because I'm very sure that all of you guys over there would want that to happen. But let that be in the Q&A session. You can ask that also, no worries. I think people at the back are not able to hear what I'm saying. आवाज नहीं आ रही People in the center are not able to hear what I'm saying. इको है Echo हो रहा है अभी ठीक है Sorry. Yeah. Keep the mic close and my enemies closer. Anil ji, couple of questions will be very personal. I hope that's fine with you. Yeah, sure. RBT से पढ़े हुए हैं आप, CA वहाँ से complete करिए. जी बिल्कुल. What inspired you to come into the financial journalism space and not the regular chartered accountancy that people generally do after that? That happened accidentally. Actually, I never planned that I would be into stock market and journalism. Both the things happened really accidentally. मैंने 1993 में CACS दोनों किया and after that in my first job that company was coming out with an IPO. So I was given the responsibility of IPO and in 94 NSE started its operation for debt market and then capital market and my boss asked we are trying to venture into this field. Would you be interested? I said IPO is over, nothing to do much, nothing challenging. So I said let me learn something new and that's how I moved into stock markets. And stock market coverage, this, that. And in 2005, again, the bigger accident happened. CNBC Awaz, that was the Hindi business channel coming up by CNBC Group. And they were looking for someone who understands Hindi very well, who is a journalist, and who has quite a good knowledge about stock market and investments. So all three qualities, they were not finding in one person. In fact, for me also, Hindi अच्छी थी. थोड़ी मार्केट की समझ थी लेकिन जर्नलिस्ट में भी नहीं था बट दे सेटल टू विद मी एंड दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड इन 2005 आई हैव नो बैकग्राउंड व्हाट्सोएवर अबाउट मीडिया जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन आई डिडंट स्टडी एनीथिंग एंड इफ आई एम लिटिल बिट सक्सेसफुल टुडे एंड द होल क्रेडिट गोज टू दैट आई डिडंट स्टडी द मीडिया एक्चुअली एंड दैट इज द ओनली रीजन आई कुड डू सम फ्यू थिंग्स डिफरेंटली. And whenever I do my programming, I look from that perspective. Person sitting across the TV, what he's thinking, what does he want actually? नहीं तो जनरली क्या होता है हम लोग मीडिया में ना रोज़ सुबह जब मीटिंग करते हैं आज का एजेंडा क्या है लाइक है ना आज हम इसको इस पे खेलेंगे आज इसको बड़ा बनाएंगे दिस इज हाउ वी न्यूज़ चैनल वर्क एक्चुअली ओके वी नेवर थिंक एक्चुअली व्यूअर को क्या देखना है उसको क्या चाहिए दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट हम क्या दिखाएंगे वो देखेगा एंड दैट्स व्हाट आई ट्राई टू चेंज इनटू माय प्रोग्रामिंग कि व्यूअर को क्या देखना है उसको क्या चाहिए एंड नॉट बीइंग फ्रॉम मीडिया बैकग्राउंड प्रोबेबली दैट हेल्प मी. मुझे लगता है मैं आज कुछ अलग कर रहा हूँ क्योंकि व्यूअर को सब मार्केट रिलेटेड क्वेश्चंस चाहिए और मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हूँ. Following up a question from your CNBC Awaaz days, now you're at Z Business. Yeah. How do you differentiate the channel from others, and what role do you think
it plays in the shaping up of the public opinion in the financial market? So every organization has some sort of different DNA into itself actually, and that's how it is actually. And I mean, I was doing really good at CNBC, and there was no reason that I should change my job actually. But in my life, I get little bit what I should say, थोड़ा मतलब परेशान हो जाता हूँ कि अब nothing is challenging. If I achieved something, then I want more and bigger challenges actually. So CNBC में हम लोग अच्छे खासे मार्केट शेयर पे बैठे थे, 75% मार्केट शेयर, कोई चैलेंज नहीं. Then I thought कि okay, and I was at number 2 position in the channel. I thought कि okay, I'm good as a player. I have my place safe in the team. Am I equally good as a captain? And that's what I wanted to try actually. And that's how I moved into Z Business. That point in time, Z Business had less than 15% viewership. And by grace of God, and COVID came. COVID was actually blessing disguise for me. And our TRP shot up like anything just because couple of things we did right. एक जब मार्केट गिर रहा था, नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है, सबको थोड़ा मरने से बचा लिया. और उसके बाद जब तेज़ी बनी तो घर घर में लोग टीवी देखने लगे. पहले सब लोग घर में इंग्लिश टीवी देखते थे, टीवी 18 देखते थे. ऑफिस में अगर ऑफिस में आपकी कैबिन में कोई पहुंच गया, हिंदी पसंद भी आती है, समझ में भी आती है, तभी चलता टीवी. इंग्लिश टीवी 18 ही था, मोतीलाल जी जानते हैं अच्छी तरीके से. और जैसे कोई आए तो कैबिन जल्दी से बदल दो, टीवी 18 लगा दो, नहीं तो बोले यार हिंदी देख रहा है. बट कोविड में ये अच्छा हुआ, घर पे देखते देखते सबकी आदत पड़ गई और सबको हिंदी समझ में आती है और शायद हमारी बात थोड़ी ठीक ठाक से समझ में आ जाती है. तो तब से उसके बाद हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा. अप्रैल 2020, just within 2 years, I joined Z Business. We made channel number 1. Today till date, we are number 1 with big margin actually. तो कोविड ने शायद आपके प्रोग्राम के लिए स्पेसिफिकली सबने अब कोविड में क्या है रुपेश जी, घर पे बैठे हैं आप, कोई नए सीरियल्स नहीं आ रहे सास बहू के, मूवीज़ नहीं आ रही, स्पोर्ट्स नहीं है, आप करोगे क्या? देखो आपके पास 2 ही ऑप्शन है. या तो आप जनरल न्यूज़ चैनल देखिए जहाँ पे आज इतने मर गए, इतने कोविड के ऐसी है, वो इतने क्वारंटाइन, ये सारी नेगेटिव न्यूज़ और डिप्रेसिंग. दूसरी ओर हमारा चैनल देखिए जहाँ मार्केट में तेज़ी वहीं से शुरू हुई, थोड़े पैसे बन गए लोगों के, घर पे काम धंधा नहीं, बैठे बैठे पैसे लगा रहे हैं. और सबसे बड़ी बात पॉजिटिविटी. हम लोग जब शो करते हैं बड़े मस्ती से करते हैं, मज़े से करते हैं. जो लोग देखते हैं उनको लगता ही नहीं कि हम बिजनेस चैनल देख रहे हैं. तो वहाँ से चल पड़ी. फिर मैंने ये वैसे कभी कोरिलेट किया नहीं है, लेकिन कोविड में जितना मार्केट चला है शायद हो सकता है आपके चैनल की वजह से चला हो. ना ना, ऐसी गलतफहमी मुझे नहीं है और आपको भी नहीं होनी चाहिए. कई लोग बोलते हैं, आप बोलते हैं स्टॉक 20% ऊपर नीचे हो जाता है. मैं बोला बॉस ऐसा है, अगर आपको मेरा पावर देखना है तो मैं तेज़ी के मार्केट में बोलूँ ख़राब हो जाए और हो जाए तब तो मानिए, या मंदी के मार्केट में बोलूँ बहुत तेज़ी हो जाए. सो इट इज़ ऑल पावर ऑफ मार्केट. वी आर जस्ट स्टूडेंट्स, वी लर्निंग एवरी डे एंड वॉट एवर वी लर्न वी ट्राई टू पास ऑन टू आवर व्यूअर्स. दैट्स इट. तो ऐसी कोई गलतफहमी मुझे नहीं है कि हम मार्केट चलाते हैं, हमसे चलता है, बिल्कुल भी नहीं. अच्छी बात. अच्छा, रिक्वेस्ट टू ऑल द ऑडियंस. ऑनेस्टली बताऊँ, घर पे नहीं चलती, मार्केट में कहाँ से चलेगी? सर वो तो घर घर की कहानी है, वो सीरियल सबके घर पे चलता है. Request to all of the enthusiasts here. The app has a section called Activity. You can go in there, post your questions. I'll probably like to take questions while this interview is going on, so that we can take a couple of questions from the audience. But till you guys do that, let me ask the next one. अनिल जी, आपका स्टॉक ऑफ द डे सेगमेंट है जी, और उसमें कभी कभी आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की भी रिकमेंडेशंस देते हैं. यस. आपको लगता है डेरिवेटिव्स के रिकमेंडेशन नेशनल न्यूज़ चैनल पे ब्रॉडकास्ट करने चाहिए? देखिए बॉस, ऐसा है कि मेरा तो डिपार्टमेंटल स्टोर है. जब आप यहाँ पर जो भी है लूलू या आपका कारफोर वगैरह में आप जाते हैं, आपको क्या खरीदना है वो आपको, उसने तो सब कुछ रखा हुआ है. सिमिलरली आई हैव for anyone and everyone related to stock market, I have something. If you don't want to trade, you don't want to invest, just consume news. I have business news. If you want to invest, I have lots of options for investors. If you want to trade in FNO, I have lots of options, futures and everything. Not necessarily that, see, आप जाके शेल्फ पे जो आपको पसंद है, आपकी ज़रूरत है, वो खरीदते हैं. करेक्ट. तो अच्छा, सेकेंडली मैं कभी ये दावा नहीं करता कि मेरा चैनल देख के आप करोड़पति हो जाएंगे, अरबपति हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है. मेरा फंडा सिंपल है रुपेश भाई. अगर आप कर रहे हैं तो मुझे क्या करना है? फॉर एग्जांपल आप और मैं दोनों जंगल में हैं, शेर आ गया तो क्या करना है? हाँ, क्या करना है? भागना है, भागना है ना, भागना है, राइट. लेकिन कितना? मुझे उतना ही भागना है कि रुपेश भाई नंबर 2 पे आया है, मैं आगे निकल जाऊँ. शेर को आपको पकड़ना है, मुझे नहीं. तो मेरा फंडा क्लियर है. इफ समबडी इज ट्रेडिंग, समबडी इज डूइंग FNO, ऑप्शंस, व्हाटएवर ट्रेडिंग,
मेरा परफॉर्मेंस उसकी परफॉर्मेंस से बेटर होना चाहिए। जिसको करना है ट्रेड वो करेगा। सारी जगह वो लीगल वार्निंग सब कुछ लगी हुई है, सब कुछ है। मोतीलाल जी कहते हैं इन्वेस्ट राइट, सिट टाइट, इन्वेस्ट राइट, वो सब लेकिन करते नहीं है ना लोग। जिनको ट्रेड करना वो करेंगे। मेरा काम इतना है कि आप जो कर रहे हैं उसमें मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। इफ़ यू टेक माई एडवाइस, माई चैनल्स एडवाइस, एक्सपर्ट्स एडवाइस, कैन यू डू बेटर? इफ यस, देन आई एम सक्सेसफुल, दैट्स इट। आपने अभी बोला द हर्ड इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज द स्लोएस्ट Sorry. द हर्ड मतलब जब एक झुंड जाता है तो वो इट्स ओनली एज फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग एज द स्लोएस्ट एनिमल। Yes. आपने बोला ना मैं Yes. मर जाऊंगा और आप No, of course not. सर निफ्टी चल रहा है आज 22,200 के करीब कुछ। क्या लगता है सर यहाँ से शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म? कल का शॉर्ट टर्म नेक्स्ट 3 6 months एंड लॉन्ग टर्म 3 to 7 years। आपको क्या चाहिए? आपका डिपार्टमेंटल स्टोर है सर, आप क्या बेच रहे हैं? मतलब मार्केट में जो तेजी होगी वो आप जितना सोचते हो उससे ज़्यादा होगी। सिंपल। वेरी गुड। So point is, see, it's a journey, and we have a long journey. We have, long way to go. अब आपको डिसाइड करना है कि मुझे, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ आपको। जो मनरेगा वर्कर है उसको अपनी एक दिन की कमाई की पड़ी है। जो एक सैलरीड क्लास पर्सन है उसको एक महीने की सैलरी की पड़ी है। जो एक छोटा मोटा बिजनेसमैन है उसको साल भर में मैं कितना कमाऊंगा उसकी पड़ी है। कोई ठीक ठाक सा बिजनेस करता है वो 2-3 साल का विजन लेके चलता है। कोई अदानी अंबानी है वो 10 साल का विजन लेके चलता है। आपको क्या सोचना है? आपको आज कमाई करनी है, मंथली, आवरली बेसिस, डेली और आवरली बेसिस पे, मिनट टू मिनट बेसिस पे करनी, तो आप मनरेगा वर्कर की तरह सोच सकते हैं। आपको, आपकी सोच आपको ले जाएगी। आप यहाँ पे देख लीजिए कई सारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं, इनमें से कोई इंक्लूडिंग मोतीलाल जी कभी टर्मिनल के सामने बैठ के नहीं देखते कि कितना क्या सौदा करना है। तो आपकी सोच अगर 10 साल की है तो ये मार्केट आपको 10 साल के हिसाब से रिवॉर्ड करेगा। 10 मिनट की है तो 10 मिनट के हिसाब से करेगा। तो देयर एम्पल मनी टू बी मेड इन दिस मार्केट फॉर एवरीवन। ओनली थिंग इज, अगर आप इस बुल मार्केट में इंडिया में पैसे नहीं बना रहे हैं, देन बॉस यू आर समवेयर, आई मीन बाय थॉट प्रोसेस यू आर रॉन्ग। सम ऑफ द प्लैनेट। हाँ, आई मीन दिस इज नॉट फॉर यू। दिस इज द गोल्डन टाइम, द बेस्ट टाइम एनीवन कैन एवर थिंक ऑफ। अगर इसमें पैसा नहीं बनेगा तो लाइफ में कभी नहीं बनेगा। देन यू आर इन रॉन्ग फील्ड, ट्राई समथिंग एल्स। तो सर ने अभी ये बोला है कि जो BTST करते हैं वो मनरेगा मेंटालिटी के हैं और जो 10 साल का सोचते हैं वो अंबानी अडानी जी की मेंटालिटी के हैं। इज दैट करेक्ट? एब्सोल्युटली। तो भाई अभी बड़ी चीज़ दिन में एक दिन में नहीं बनती ना। नहीं सही बात अगर 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 सारे इंडस्ट्रीज ये सोचे हैं कि मैं आज ही प्लांट लगाऊं कल से प्रोडक्शन शुरू हो जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। प्लांट लगाने में 3 साल लगते हैं, स्टेब्लिश करने में अगले 3 साल, और उसके रिटर्न आने में अगले 5 साल लगते हैं। करेक्ट। अगर वो अगर एक महीने की, एक दिन, एक हफ्ते, एक साल की सोचेगा तो बड़ा काम कैसे करेगा? तो अगर आपको इनकम बनानी है देन इट इज़ फाइन। इफ़ यू वांट टू क्रिएट वेल्थ देन यू हैव टू बी इन दिस मार्केट फॉर लॉन्गर टर्म। मैं लास्ट मार्च से, आई एम श्योर जो लोग देखते हैं, मार्च से एक ही बात बोल रहा हूँ कि ये वाला जो बुल रन है इंडिया का, ये वन ऑफ द बिगेस्ट एवर बुल रन है और स्ट्रॉन्गेस्ट एवर। इस बुल रन में फर्स्ट टाइम ऐसा है कि कोई ऑपरेटर नहीं है। हर बार बुल रन के पीछे आपको एक दो जोकी लगते हैं कि ये चलाएंगे वो चलाएंगे। इस बार सारी कंपनियां आपको परफॉर्मेंस दे रही है, इकोनॉमी परफॉर्मेंस दे रही है। ऑल द प्रोमोटर्स हैव लर्न द लेसन वेरी हार्ड वे। अब बैंक का पैसा खा के भागना नहीं है, चुकाना पड़ेगा। मोदी जी कहीं से पकड़ के ले आएंगे नहीं तो, ठीक है। फिर आपको बजाय कंपनी में से पैसा निकाल के साइफन ऑफ करना है, मार्केट कैप बनाना है। ये सारी चीज़ें प्रोमोटर्स ने सीखी है। इन्वेस्टर्स, वी आर नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन FIs, वी हैव आवर स्ट्रॉन्ग रिटेल बेस विच इज़ कमिंग थ्रू म्यूचुअल फंड्स डायरेक्टली ऑल्सो, PMS, AIF। तीसरा, इट्स नॉट दैट कि हम ग्लोबल मार्केट्स को फॉलो कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है। वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग टॉप इकोनॉमीज, राइट? So everything is there. I mean, we have complete recipe of a bigger bull run, and this bigger bull run could be bigger than what we have witnessed in Japan for 45 years. It could be mother of all bull runs across globe. Forget India. India का तो है ही. Across globe, it could be that big bull run. Of course, only thing, we don't do silly mistakes. We don't do something which, वो U-turn ले ले गाड़ी.
आपकी स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू आर ऑन हाईवे, यू कैन रिड्यूस द स्पीड, एक्सेलरेट द स्पीड, बट यू कैन नॉट टेक यू टर्न। तो हम कुछ ऐसी फालतू की गलती ना करें कि जिससे बढ़िया कुछ चल रहा है वो खराब हो जाए, बट अदरवाइज इंडिया इज ऑन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पाथ, एंड आई एम श्योर वी आर पोइज्ड फॉर अ मच मैच्योर एंड बिगर बुल रन एक्चुअली। I hope everyone's taking notes here because this is coming up from someone who has the collective wisdom of some of the best financial minds in India because he interviews almost all of them. Saying that, sir, आपने बहुत सारे जैन फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के साथ आपने काम किया है, आपने उनका इंटरव्यू किया है। ज़्यादातर मोतीलाल जी सारे हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट जैन ही हैं actually। नवनीत जी मनोत है, नीलेश भाई हैं, नीलेश प्रशांत भाई जैन हैं। हैं, मोतीलाल जी हैं। इनमें से कोई अगर एक चीज आपने जो सीखी है वो क्या होगी, जो समथिंग दैट यू वुड वांट टू शेयर विद एवरीवन हियर इंक्लूडिंग द यूथ? एक चीज वैल्यू, जैन लोगों में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सी आज क्या है, हम कहीं भी दुनिया में जाते हैं, आप किसी को बोलो जैन है, जैसे आपने बोला जैन है, एक सर्टेन इमेज दिमाग में आती है कि ये आदमी ये करता है ये नहीं करता है, करेक्ट? दैट इज द पावर ऑफ आवर रिलीजन, कि भाई उनको पता है ये दिमाग से बहुत तेज है, पैसे वाला है, पैसा कमाना जानता है। ये फर्स्ट इमेज जैन की जो दिमाग में किसी नॉन जैन के दिमाग में आती है, वो बहुत शार्प इंटेलिजेंट है, पैसा कमाना जानता है। दूसरी, यार ये सर्टेन वैल्यूज़ है, ये गलत काम नहीं करता, ये नॉनवेज नहीं खाएगा, ये अल्कोहल ड्रिंक्स वगैरह नहीं करेगा, आलतू फालतू के काम नहीं करेगा, करेक्ट? ये एक इमेज है जैन की, और वो वैल्यू सिस्टम जो हमारा है वो हमारे काम में भी आता है, वो वैल्यू सिस्टम आता है। तो आई एम श्योर अगर आज फॉर एग्जांपल मुझे रिटायर होना है और मुझे हिमालय पे जाना है, तो मेरे लिए सोचने की ज़रूरत ही नहीं, एक नीलेश शाह एक नवनीत मनोहत ने पैसा दिया मैं चले जाऊँगा, इतना ट्रस्ट है, क्योंकि दे हैव बीन ब्रॉट अप विद दैट काइंड ऑफ वैल्यू सिस्टम विच दे इम्प्लीमेंट इन देयर जॉब एक्चुअली, इन देयर प्रोफेशन। तो आई थिंक जैन लोगों के साथ होने का सबसे बड़ा फायदा है, और मैं तो कितनी बार मैं बहुत खुल के बोलता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा इसीलिए जैन फंड मैनेजर्स को रिकमेंड करता हूँ, इनके पैसे डालिए, मोतीलाल जी के फंड में पैसे डालिए। ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ऑफ कोर्स यू हैव ऑल द एवरीथिंग। जैन वैल्यूज। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, सर तो बिजनेस देखते हैं, आपके पार्टनर रामदेव अग्रवाल साहब जो हमारे हिंदुस्तान के वॉरेन बफेट है, हमारे गुरु है, मैं उनके चरण धो के पी लूँ, इतना मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। उनका एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ जो सबको समझ में आना चाहिए। वो एक ही चीज़ बोलते हैं, वाली अनिल कुछ भी हो जाए खरीदना क्वालिटी है, कचरा कभी नहीं खरीदना, कचरा हमेशा कचरा रहेगा। तो दिस इज द वैल्यू सिस्टम व्हाट वी फॉलो एक्चुअली, कि वी स्टिक टू अ सर्टेन लेवल ऑफ क्वालिटी इन आवर प्रोफेशन, इन आवर एक्ट, इन आवर बिहेवियर, इन आवर सोसाइटी। तो आई एम श्योर दैट, और इतने बढ़िया, और अच्छा सारे टॉप क्लास फंड मैनेजर्स आपको जैन मिलेंगे ही मिलेंगे। आजकल तो जिनका नाम सबसे ज़्यादा है जीक्यू जी, राजीव जैन साहब, GQ जी, जिन्होंने करेक्ट, वो भी जैन है। तो आप देख लीजिए नज़र उठा के, बस एक सिंपल सी चीज़ है, ये फील्ड तो हमारा है, हम सही किसी बात को है। घुसने नहीं देंगे, ये हमारा है। फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, मनी, बस ये तो जैन लोगों का काम है, कोई दूसरा घुस के दिखाए। एब्सोल्युटली। तो आपने बताया सर कि इंडिया इज ऑन अ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग रैली राइट नाउ। आपको लगता नहीं ऐसी रैली में सारा कचरा धुल के क्वालिटी प्रोडक्ट बन जाएगा? ना, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी गलतफहमी मेरे को बिल्कुल नहीं है। देखिए, जहाँ पैसा और पावर है वहाँ कभी न कभी कुछ न कुछ गलत होता है, ठीक है? हर आदमी की थॉट प्रोसेस सेम नहीं होती। ओनली प्रॉब्लम, ओनली थिंग इज इन दिस मार्केट, in this bull run, it is very difficult to lose money. To lose money. Making money is not that difficult. Losing money, because आपको बहुत ढूंढ के कचरा कम नहीं ढूंढनी पड़ेगी, एकदम ही थर्ड क्लास ऐसा प्रमोटर ढूंढना पड़ेगा कि जो आपको चिपका के ही जाएगा। Otherwise, if you find and buy a reasonably good company, reasonably fundamentally good company, बस पैसा बनेगा। इंडिया में इतनी तेजी है, इतना बिजनेस है, बस द होल world is coming to India. You can sense when you come to India that किस तरह की buoyancy है इकोनॉमी में, राइट? सो आई थिंक आपको गलत स्टॉक चूज करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी है, अच्छे स्टॉक तो बड़े इजीली अवेलेबल हैं। बहुत सही कहा सर। मैं भी काफ़ी लोगों को बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है पैसा गंवाने के लिए ऐसे मार्केट में, बहुत ज़्यादा। यस, और कुछ भी नहीं करो, आप सो रहे होंगे ना तो भी आपका पैसा बनता है। एक्चुअली अपने को सेगमेंट थोड़ा सा छोटा दिया है, तो कुणाल, इफ यू कैन पुल अप अ क्वेश्चन प्लीज, सो दैट आई कैन सी इफ देयर इज ऑडियंस क्वेश्चंस, बिकॉज मेरे पास अभी तक आधा पेज का क्वेश्चन खत्म हुआ है, 2 पेजेस फुल हैं, और टाइम मुझे
पता नहीं कितना कम क्यों मिला है, but Kunal, would you be able to? Yeah. Till then, let me ask you, if I can ask you, the couple of days back you spoke about algo trading यस on your channel. और algo trading में आपने ये बताया था कि आज की तारीख में वो वॉल्यूम प्रोवाइड करता है. आपको लगता है algo trading in today's time is doing then better than active management by certain fund managers? नो आई डोंट थिंक सो. सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन हेल्प यू, बट इंटेलिजेंस तो हमारी है. आर्टिफिशियल आर्टिफिशियली होता है, ओरिजिनल ओरिजिनली होती है. सो एल्गो ट्रेडिंग, सी ये सब चीज़ें किसके लिए? ये उन लोगों के लिए जो डिसिप्लिन नहीं है. स्टॉक मार्केट के सबसे बड़ा जो ड्राइविंग फैक्टर है ग्रीड एंड फियर है, राइट? प्रॉब्लम क्या है, जब मैं ट्रेड करता हूँ तो मुझे बड़ी ग्रीड है कि यार ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और जैसे अगर मेरा ट्रेड गलत जाता है तो वो डर इतना लगता है. एल्गो ट्रेडिंग रिमूव्स योर इमोशन. उसमें भाव है, भावनाएं नहीं है. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे. ओके, सो क्या होता है कि जब अगर आप लॉस में हैं तो आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर करना है, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे. लेकिन मशीन है तो मशीन को कोई फर्क नहीं पड़ता. एंड दैट इज द रीजन, इफ यू आर एक्टिवली ट्रेडिंग देन एल्गो ट्रेडिंग इज बेटर फॉर यू. बट इफ यू आर इन्वेस्टिंग, एल्गो ट्रेडिंग कैन नेवर बी सब्सटीट्यूट टू इन्वेस्टिंग. इन्वेस्टिंग का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है. और इन्वेस्टिंग में एक चीज़ बता दूं, आप 50 फॉर्मूले बना लीजिए, 50 चीज़ें बना लीजिए, ये बना लीजिए, वो बना लीजिए, लेकिन जो एक्सपीरियंस किसी रामदेव अग्रवाल का होगा, किसी नवनीत मुनोल का होगा, किसी नीलेश शाह का होगा, किसी प्रमोटर को पहचानने में 5 साल 10 साल बाद ये प्रमोटर कितना बड़ा हो सकता है, ये बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है, और एक बात करके जो जजमेंट आता है, यार ये मन में क्या सोच रहा है, कितना सही बोल रहा है, कितना गलत बोल रहा है, वो कहाँ से लाओगे बॉस? सही बात. उसी के लिए हमें इन लोगों की तो इन्वेस्टमेंट नेवर कंफ्यूज योर सेल्फ कि एल्गो ट्रेडिंग इज इन्वेस्टमेंट है. उसमें तो लिखा ही पीछे ट्रेडिंग है बॉस. इन्वेस्टमेंट कहाँ से हुआ? सो इफ यू वांट टू ट्रेड, ऑफ कोर्स यू टेक हेल्प ऑफ एल्गो ट्रेडिंग और व्हाटएवर, बट इफ यू वांट टू invest through proper system, either good mutual funds, or you invest directly into blue chips, whatever suits you. Yeah. ब्रिलियंट सर. एक सवाल है, जिनका नाम अनोनिमस है. थैंक यू. Which sector looks excellent like government sectors, IT, AI? What should an investor look in a company? Is the promoter or books or market share? Nowadays, many MSME IPO are coming. What is your take? Should invest from the profile of one investor? Okay, so first coming to sector, yes, the sector what you have written, IT is one of my most favorite sectors since last Navratri days. In Navratri, ये वाला नवरात्र. हाँ लास्ट नवरात्रि जो गया, तब मैंने फर्स्ट टाइम मैंने कहा कि आईटी सेक्टर बॉटम आउट हो चुका है, आईटी बहुत अच्छा है. देन ऑन दिवाली ऑल्सो एंड ऑन दिस न्यू ईयर ऑल्सो आईटी वुड बी द सेक्टर ऑफ द ईयर. तो और आप देख सकते हैं आईटी तब से अच्छा रनअप में. आईटी आई एम स्टिल वेरी बुलिश. अपार्ट फ्रॉम आईटी आई एम बुलिश ऑन फार्मा, आई एम बुलिश ऑन PSU stocks, I am bullish on cement. Okay, these are few themes. In fact, I am very bullish on Indian economy. So in each and every sector, whatever you understand, there are ample opportunities to invest into. जो कंपनी आपको समझ में आए करिए, बट पैसा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में बनेगा, पैसा आपका रेलवे डिफेंस, लोगों को लगता है रेलवे डिफेंस 10-10 गुना हो गए, 5-5 गुना हो गए, अभी कुछ नहीं हुआ है बॉस. एंड डिफेंस 2.0 जो स्टोरी आएगी वो आप लोग देखते रह जाएंगे. टुडे वी हैव सीन ऑल दिस डिफेंस स्टॉक्स गॉन थ्रू द रूफ एक्चुअली. Absolutely. बट व्हाट कमिंग नेक्स्ट इज मोर इंटरेस्टिंग. पूरी दुनिया भर में बॉस इस वक्त ये इजराइल हमास और जो कुछ रशिया यूक्रेन हुआ है, उसके बाद द बिगेस्ट थ्रेट कुड बी इन 2024 और 25 in global economies or countries rather, not economy, social unrest. You never know in which country in Europe probably you could see social unrest. And now every country wants some sort of army, some sort of arms and ammunition. कौन देगा? अमेरिका से इटली से लेंगे, बहुत महंगा पड़ेगा बॉस. हमारा HAL बनाएगा, BDL बनाएगा. Today these stocks are up only on India story. What if when they start exporting their products to global markets? You also already started doing that. They just started doing it last 6 months. बस ये स्टोरी जो बनेगी आप देखते रह जाएंगे, और हमारे से सस्ता कोई बना के बेच नहीं सकता. Absolutely. तो दैट इज एक नया सेक्टर है जो मैं बताना चाहता हूँ, जो जनरली मैंने डिस्कस नहीं किया बिकॉज वहाँ पे लिस्टेड स्टॉक्स बहुत कम है नहीं एक्चुअली, विच इज़ समथिंग रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी. यू ऑल आर मिलियनियर्स बिलियनियर्स, सब लोग बहुत पैसे वाले हैं दुबई में, ऐसा मैं मानता हूँ. सही मानता हूँ.
ऑलमोस्ट हाँ. ओके सो साइबर सिक्योरिटी इज द नेक्स्ट बिग थिंग गोइंग टू हैपन ग्रेजुअली आप देखेंगे ये जो हर 2-3 किलोमीटर में आपको पुलिस स्टेशन मिलते हैं थाने मिलते हैं चौकी मिलती है ये सब कुछ काम के नहीं रहेंगे सारे साइबर पुलिस स्टेशन काम आएंगे आज जितने फ्रॉड हो रहे हैं सब वो हो रहे हैं सो इफ़ यू फाइंड एनी गुड कंपनीज स्टार्टअप्स इन साइबर सिक्योरिटी प्लीज गो एंड डू इन्वेस्ट that is their big money is waiting to be made actually so that is new thing probably I don't know कहाँ आपको मिल सकता है मौका there are so many companies in UK who are doing great job in cyber security मे भी यहाँ भी होंगी थोड़ी बहुत इंडिया में कम है We lack semiconductor, we lack cyber security, but I think और एक और चीज़ semiconductor is बताऊँ coming in. जहाँ जहाँ लोग ज़्यादा इलिटरेट है साइबर इन टर्म्स ऑफ साइबर एजुकेशन वहाँ पे पैसे ज़्यादा बनेंगे से बहुत स्ट्रेंज है क्योंकि वर्ल्ड के बेस्ट हैकर्स जो हैं हाँ. एथिकल हैकर्स हैकेथॉन में जो जाते हैं वो इंडियंस हैं हाँ दिमाग है ना लेकिन उनका इंडिया में अभी तक साइबर सिक्योरिटी का काम इतना खास नहीं हुआ है नहीं जहाँ पैसे ज़्यादा है वहाँ हैकिंग करेंगे ना सही आप फिर किसी को उठा के ले आओगे किसी बच्चे को जिसके पास पैसे नहीं उठा के ले जाके फ़ायदा क्या है तो अभी वो लोग अमेरिका और इंग्लैंड वालों को हैकिंग कर रहे हैं बाद में हमारे पास बहुत पैसे आ जाएंगे हमारे पास भी आएंगे ये चीज़ करीब 15 साल पहले आनंद जी राठी ने बोली थी एक स्टेज पे कि इंडिया का जो मेन्यू कार्ड है सेक्टर्स का ऐसा मेन्यू कार्ड दुनिया में और कहीं पे भी नहीं मिलेगा नहीं एब्सोल्युटली if you have another question I'll take because I'm already out of time but while you put that up I'm just going to ask you one last question from my side and then I'll open the floor for questions on the mic आपका एक और कॉन्सेप्ट है निवेश की पाठशाला जी आप उसका गुरु मंत्र आज सबको यहाँ पर प्लीज बता सकते हैं देखिए इस वक्त इंडिया को लेके किसी को कोई स्टोरी बेचने की बताने की जरूरत नहीं सब समझदार है सबको पता है पैसा कहाँ बन रहा है प्रॉब्लम एक ही है everyone or rather most of you are under invested that is the problem सबको जितना इक्विटी एक्सपोजर चाहिए उतना है नहीं and everyone is waiting for the correction अब पहले करेक्शन किसी और रीजन से फिर सोचा इलेक्शन के बाद लेंगे अब इलेक्शन के पहले इलेक्शन का रिजल्ट आ गया राइट आ गया ना अब लोग तो यहाँ तक बोलते हैं इलेक्शन करवाने की जरूरत है या सीधा शपथ ही दिलवा दें राइट सो अब आप क्या क्या चीज़ का इंतजार करेंगे मोर मनी लॉस्ट वेटिंग फॉर द करेक्शन रादर देन एक्चुअली लॉस्ट इन द करेक्शन तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है प्लीज़ डोंट वेट फॉर करेक्शन आएगा तो और डाल देंगे ये सोच के करिए मुझे नहीं लगता कि दुबई वालों के पास पैसे की कोई कमी है अभी फुली इन्वेस्टेड हो भी जाएंगे 4-6 महीने में जब करेक्शन आएगा आपके पास और पैसे हो जाएंगे चिंता मत करिए गाइडेंस की कमी हो सकती है सर हाँ पैसे की पैसे की कमी इसलिए मैं बोल रहा हूँ बॉस पहले यार मतलब आपके पास 3 स्टेज है कि एक मेरे पेट में जितनी जगह उससे थोड़ा कम खाऊं यार मैं आई फील लाइट एक मैं बिल्कुल बैलेंस उतना खाऊं एक मैं ठूस के खाऊं अभी ठूस के खाने का ना अभी तक तो उपवास वाली सिचुएशन में चल रहे हैं ये लोग पर टाइम ठूस के खाने का है अभी तो अरे मतलब का शुरू ही नहीं किया यार मतलब थोड़ा यार एक्सपोजर तो लीजिए इक्विटी में दिस इज द टाइम टू मेक मनी आई मीन नेक्स्ट 5-10-15 ईयर्स बिलोंग्स टू इंडिया मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताइए मैं आपसे पूछता हूँ चलिए आज 22,000 निफ्टी है जो लोग इंतजार कर रहे हैं कितना घट जाएगा कितने को लगता है कि 15,000 हो जाएगा निफ्टी एक नहीं है भाई कहाँ से लाओगे ढूंढ के 18,000 अच्छा 20,000 चलो 20,000 मान लिया 20,000 मीन्स व्हाट 10% आज हम 22,000 पे हैं या हम 70,000 के सेंसेक्स पे हैं 70,000 सेंसेक्स इज लास्ट 75 ईयर्स आई अगले 75 साल का ही नहीं है ये 22,000 का निफ्टी पिछले 22 साल का ही है अगले 22 साल का ही है अगर 10% का करेक्शन लगता है उसमें आपको और पैसा लगाना है यार तो 50% की अपसाइड क्यों छोड़ रहे हो क्यों 10% के लिए इंतजार करना है यू गेट माई पॉइंट एब्सोल्युटली तो इफ यू कीप वेटिंग एंड देन यू फील यार मेरी तो बस मिस हो गई ये हो गया सो आई थिंक इट इज़ राइट टाइम यू इन्वेस्ट यू हैव प्रॉपर एलोकेशन इनटू इक्विटीज फॉर द नेक्स्ट जनरेशन एंड आई एम श्योर दैट पीपल विल अब तक आपने जितना गोल्ड खरीदा है जितनी प्रॉपर्टी खरीदी है उसके लिए आपके बच्चों ने बोला कि मेरे फादर ग्रैंडफादर बहुत अच्छे थे लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में प्रॉपर इक्विटी नहीं हुई तो 25 साल बाद 50 साल बोलेंगे यार मेरे पिताजी ना थोड़े बेवकूफ़ टाइप के आदमी थे उनको पता ही नहीं चला कि पैसा इक्विटी में सबसे ज़्यादा बनने वाला है अगले 25 साल में और वो गोल्ड लेके बैठे रह गए या प्रॉपर्टी लेके बैठ गए ये होने वाला है बॉस राइट टेक इट फ्रॉम मी इन राइटिंग बस नीरव भाई एक सवाल एक लास्ट जस्ट फॉलो अप क्वेश्चन एंड आई एम देन गोना लीव इट सॉरी
आपने बोला कि पिताजी ने नहीं खरीदा, यहाँ बहुत सारे यूथ बैठे हैं, आप उन्हें क्या शिक्षा देंगे कि वो चालू कर दे खरीदना ताकि पिताजी पे डिपेंडेंट नहीं हो? सी अब उनको जो लेना है उनको उनकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए लेना है. नहीं, अपने लिए. Because see, अपने लिए तो कोई it's given actually. See what you must understand. See, when you invest into gold, when you invest into property, you don't invest for tomorrow, day after, or a week, year. You invest for 5 years, 7 years, 10 years, or probably people don't sell their property, don't sell their gold, right? Then only they make money. So there are two things to create wealth. One, how much you are investing, and for how long. इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब होगा ना तब पैसा बनेगा. बस पैसा है ना वो अच्छे स्टॉक्स लेके अच्छे म्यूचुअल फंड में डाल के कुंडली मार के बैठने से बनेगा. रोज रोज भाव देगा. आप गोल्ड का भाव रोज देखते हो, कभी मन होता है कि गोल्ड बेच दूं? और अगर आपकी प्रॉपर्टी का भाव भी अगर रोज पब्लिश होने लगे तो क्या आपका मन होगा कि आज बेच दूं कल खरीद लूं? नहीं ना. बट वो इक्विटी के साथ वो प्रॉब्लम है. बीइंग हाई लिक्विड एसेट क्लास, it creates lot of hiccups in your mind, emotions. So I think get over of it. Your next generation है, was you are the most fortunate people who are going to see the bestest of time for India. हम थोड़ा एक generation पहले पैदा हो गए. मुझे अगर For the youth, make sure that you take this guru mantra along with you. अगर मुझे एक generation बाद पैदा होने का मौका मिलता तो मजा आ जाता. मैं इतना पैसा कमाता आप सोच नहीं सकते. You might end up making more money from investing in equities as opposed to doing your own business or work or career or whatever you do. That's what Mr. Anil So Singhvi. if you don't want to invest into equities, fine. Either invest into good businesses or you start your own business. Be entrepreneur. नौकरी करके कुछ नहीं होगा बस. किसी और के लिए पैसा कमाना जरूरी नहीं है. आप खुद के या लिए तो कमाइए. आप खुद अपना अच्छा बिजनेस करो, नहीं तो अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट कर लो. दो में से एक चीज करो. अगर दोनों नहीं करें तो देयर इज अ क्राइम. अरे वाह. IPC अभी तक लगा नहीं है इसमें. लेकिन that's my time. I think I've overgone my time. So apologize to everyone. Neerabai, do I have one question from the audience? No questions from the audience? Again, I've taken your questions. I'm so sorry, so sorry. A big round of applause for Mr. Thank Anil you. Singhvi here, Thank you. managing editor of Z Business. Thank you.